10 to 15 years include liveliness detection of biometric traits in cloud environments. So with this brief profile, I, on behalf of the department, welcome. Thank you, sir. So, without any further delay, we will be simply starting the session. So, sir, the session is over. Thank you, Jayanta sir. Good afternoon to all of you. One more, in the introduction, one more thing is left out is I am also a student of this building, this university. So, I am doing PhD under Honorable sir. So, it's a great privilege to be on the second day of this event. I can understand you had a long interactive session before this tea. So as I promised to sir that I'll be continuing maybe for up to 1:30, half an hour. So let us see how it goes. So I'll not be going very deep into the concepts. To start with, I have a generalized PPT where a student why I need to procure or why I need to spend so much of money for procuring the original thing towards the security. So few things, you always update your operating system 10, 15, 20 years back. Updating and gifting data was very tough, very costly. Nowadays it's not there, so you should regularly update your operating system. Use strong passwords. What do you mean by strong password? Okay, somebody said that the strong password should start or have some capital letter. It should have characters, it should have special cases. So what you do, my name is Niladri, so my password will be Niladri _ 1980 because I was born in 1980. Now what is this kind of password? Everybody can get it because they know who I am. Okay. The next thing is we give password as the name of our pet. Do you think the name of your pet is not known by anybody? It is also known. If I have to target you, I will collect all the information about you and start doing background, some activities and so strong passwords you should understand that which is no way related to you. I believe all of you are at 10 plus, not even the name of your ex-boyfriend and girlfriend also. Okay, because people know who was your ex-boyfriend and girlfriend. Okay, so these things you should be very careful when setting your password in today's day. Next, enable firewall protection. So many of you know when you are using, you should enable firewall protection because that saves inbound and outbound data. Use some spyware removal tools. Suddenly you are going to Goa, you are searching a ticket for 20 December, Agadala to Goa, and suddenly here on the right hand side you find that Goa ke hotel ke advertisements are kaise aa? Don't think that once you are in this digital world, it is not like in previous days we used to say, I believe maximum of you are regularly from here, Pro. They used to close their eyes and put the sabun छुपाते थे. तो उनको लगता था कि अच्छा मैंने आँख बंद करके छुपा दिया तो कोई नहीं देख रहा. Don't think so. In this digital world, everybody is watching you. If not everybody, at least the system is watching what you are trying to do. So we should have spyware removal tools also. If you know that you are working in a sense, it is very cumbersome process to take backup every day. I told who told. So I don't know how many of you are using Drive to keep your work documents. We at government we are using our NIC cloud. We have a workplace where mailbox is there, work drive is there, where we are saving. So be sure that you are keeping all your data in the drive, not your device. You may say that I bought a 2 lakhs rupees MacBook, so definitely it will run for 5 years, 10 years. You never know. It may die next day morning. Next day morning it may not open. So we should be very careful about taking up backups. How do you keep backups? How you take backups? Pen drive में. हार्ड डिस्क किसने बोला? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. इसके साथ आपका 100 साल का एग्रीमेंट हुआ है क्या कि वो कभी मरेगा नहीं हार्ड डिस्क? इसका भी जान होता है ना, वो मरेगा, कल सुबह वो खुलेगा नहीं खुलेगा इसका भरोसा कहाँ? उन्होंने लिख के दिया, लिख के भी देगा तो आपका डेटा कहाँ जाएगा? आपका यूनिवर्सिटी से फेयरवेल का डेटा, फेयरवेल जिस दिन हुआ था ग्रुप फोटो था, इट इज वेरी इमोशनल एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ.
चला जाएगा, देगा कंपनी। तो now you are student, you may start using Google Drive where you get 15 GB free. You can use OneDrive, you can use this one Mac का जो drive है, all these things you can use to store all your data there. Once you get it, immediately you should see. And once you are official, sir, all of you should start using government email ID and you should dump your data in the government drive. Because you may be working for a very sensitive activity at this moment. Okay, let me talk about from the scenario of Tripura University. There can be two sensitive kind of things. One is looking into the cyber security policy of the university, or maybe some recruitment things, or maybe some procurement things. So in my mind, sitting in an administrative position, these are the three things at this moment that is coming into mind. So if you are working in that particular sector, and if your data or your documents get leaked or compromised, then who will be ultimately the loser? You will say, मेरा क्या है, मुझे नहीं दिया, तो मैंने यहाँ पे रखा. Ultimately, university will be loser. Ultimately, the country will be loser. Something will happen behind that. So we should be saving our important files. ठीक है? स्क्रीन सेवर, इस रूम में काम कर रहे हो, बॉस ने बुलाया, उस रूम में जा रहे हैं, आपका सिस्टम ओपन है, स्क्रीन सेवर यूज कीजिए, 30 सेकंड 50 सेकंड्स में उसको पासवर्ड पे जाना है. ठीक है? So these are basic things. Okay, internet users बोलने का जरूरत नहीं कि how it is penetrated. ठीक है? So what is the best thing and the worst thing? The best thing is we all are connected, and the worst thing is yes, we are connected. Just try to understand. Previous days we used to have our water from the pond or the well. Now water supply department is giving us water, right? अगर कोई दुश्मन आ जाता है बॉर्डर पार करके और आके यहाँ पे जो कॉलेज टिला है, वहाँ के जो पानी का बड़ा टैंक है, उसमें अगर जहर घोल देता है तो पूरा कंट्री, पूरा सिटी कल सूरज नहीं देखेगा. So try to understand because why it has happened. We are all connected together. If you at that point is having a vulnerability, remain assured that PMO's office is in a vulnerable position because you are vulnerable. आपके थ्रू कनेक्टेड है सारा नेटवर्क. So we should this is a very simple thing. We are all connected. अच्छा, आप एक सोचो, आपके शहर में, आपके सिटी में अगर मेरे घर उनके घर में बाउंड्री नहीं, कितना अच्छा होगा ना. मैं दौड़ के उनके घर में जाऊंगा, मैं दौड़ के, और वही सिचुएशन रात को अगर चोर आएगा तो सोचो कैसे भागेगा, भाग के कहां जा सकता है. तो everything has got its advantages and disadvantages. People will say don't use UPI payment, don't use it. बॉस एडवांटेज दिया है तो उसका डिसएडवांटेज तो रहेगा. We should know how to keep ourselves safe. That is the mantra of the day, right? This is an example I am using for more than 10-15 years. The day I started giving cyber security presentations, and this is example, and this is the best example to keep the audience afraid of. Just think, 2001. You just in the scenario. Think about the scenario. 2001, when I was in second year or third year of my engineering, I used to beg and go to Minal sir थोड़ा नेट करना है, मेल भेजना है, कहाँ मेल भेजना है, सर मेरा दोस्त है बेंगलोर में पढ़ रहा है, चेन्नई में पढ़ रहा है, उसको मेल भेजना है. उनके वहाँ पे फीस सेट होता था, नेट मिलता था. आज if I am in the middle of a meeting with my director general, my daughter, if she will reach home at 3 p.m., 3:15 after taking shower, if she is not getting data, she will start giving me 10-15 continuous calls. Papa, your network is down, you should take care of it. Now you should understand how connected we are. So in 2001, when connection was not in that way, actually we are a generation, your generation is different. We are in a generation, we have seen radical changes in technologies. हमारे पास the first computer that I bought, it was 4.5 GB of hard disk. अभी ये जो मेरा बैग है इसमें कितना टेराबाइट है मुझे खुद पता नहीं. ठीक है, उनका एक बैग है गाड़ी में रखा, उसमें भी कितना टेराबाइट है nobody knows. ठीक है. So in those days, night 15, a virus, a worm affected world. The red dots are, it started affecting the vulnerable systems. Those days when we were not connected that way, you just see after 19 hours, it entered almost 70% of the whole world. Now in 2025, do you think it will take more than 19 seconds to enter the whole world who are all connected? So we should be very careful
what we are trying to do. Each one individual of us is a threat to the country if we are not safe. So that's why students आप बोलेंगे मैं Photoshop का Adobe का original license क्यों use करूँ, मैं pirated use करूँगा. You are always a threat. You will pose a threat to the country, to the nation, to your organization, to your department. ठीक है? So primary threats, worms, viruses, trojans, spyware, they always follow on the backside what you are doing, what you are tracking. अभी तो ये AI का योग हो गया. अभी आप एक इंस्टा में एक टाइप का रील अगर देखते हो, बिहार में इलेक्शन हो रहे, प्रशांत किशोर का एक रील देख लिया, बाकी 10 रील में से 9 रील प्रशांत किशोर का ही आएगा, तेजस्वी यादव का नहीं आएगा. ठीक है ना? So these are the things. Then cyber bullying, you should always take care of your juniors. इनको यूज करके कोई बुली कर रहा है कि नहीं, उनके कंटेंट क्या हो रहा है, उनके पास अगर आप डेस्कटॉप देते हो, टैब देते हो, तो उसमें सेफ सर्च ऑन है कि नहीं, all these things you have to take care of. Okay? Disturbing content. आप घर से ऑफिस आ रहे हो, बीच में से बहुत ऐसा हो, बीच में से देखा कि एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है. The parts of the body of a human being is scattered across the road. You have taken a snapshot and you have uploaded it to the Facebook. आपको लगा कि मैं दे देता हूँ, लोगों को पता चले इधर एक एक्सीडेंट हुआ. अब जस्ट सोचो, my father at 73 years old sitting at home and my daughter at an age of 13 years sitting at home. If both of them get that photo, how disturbing it will be from them for them. So whatever we do on the net, whatever we upload, whatever we do, you should understand what is the effect of it in your social life, in your professional life, in your personal life. That should be very important. ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं. You should understand. Identity theft. आज कॉर्नर में वो लड़का बैठा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है उसका नाम क्या है. 15 साल 20 साल के बाद वो कहीं पे डायरेक्टर बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा, एसोसिएट प्रोफेसर बनेगा, वीसी बनेगा. मैं आज से उसको फॉलो करूंगा, तिनका उसको फॉलो करता रहूंगा. जिस दिन वो रिटायरमेंट में जाएगा ना, तब ग्रेजुइटी का पैसा जब आना शुरू होगा, उसी दिन उसको अटैक करूंगा. ये होगा मेरा पेंशन. लोग पूंजी जमाते हैं ना पेंशन के बाद, रिटायरमेंट के बाद यूज करेगा उसको. मैं आज से आपको फॉलो करूंगा क्योंकि आप मान बनने वाले हो और मैं आपको कुछ एक्शन नहीं, मतलब I will not harm you throughout this 30 years or 40 years of your professional life. The day you retire, I know that within next 15 days gratuity का money, EPF का पैसा, जमा पूंजी सब आपके घर आएगा, आपके अकाउंट में. उसी दिन आपका तिजोरी खाली करके मैं निकल जाऊंगा. So if you start giving your information day by day, you never know somebody behind it is collecting all information to attack you down the line after 20. अभी आपको आपके अकाउंट में कितना पैसा है? उसके अकाउंट में 5-10 हजार रुपए होगा. स्टूडेंट दिवाली में पैसा वैसा मिला है, भाई दूज में गिफ्ट मिला होगा, 10-15 हजार रुपए होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम. क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो वो आईफोन खरीद लेगा, खर्चा कर देगा. तो 10-15 हजार रुपए लेके मैं क्या करूंगा? उस टाइम पे मैं आपसे 10-15 करोड़ रुपए लेके निकल जाऊंगा. So you should always remember that तिनका करके आपके जो आइडेंटिटीज हैं वो कहीं ना कहीं से हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे यूज करके आगे जाके कुछ ना कुछ किया जाएगा. So you be very sure while giving your IDs. आप मैक्स में जाओ, शॉपर स्टॉप में जाओ, पर्टिकुलरली लेडीज, आपके पीछे मैं खड़ा हूं, आपने कुछ शॉपिंग किया, ऊपर से बोल रहे हैं मैडम फोन नंबर, आप भी बेझिझक आपके फोन नंबर दे देते हो. और मैं ना सबसे बड़ा शैतान हूं इस सिटी का, मैं आपका फोन नंबर नोट कर लिया. Why you will give the numbers? Have any one of you ever objected that I will not give the phone number? None. मैंने ऑब्जेक्ट किया था मैक्स में आज से 1 साल पहले. बोला सर इंडिया में किसी के पास कोई तो आपका रिलेटिव होगा जिसका नंबर आपके पास होगा. मैं फटक से खोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईडी कार्ड दिया. मैं गाली नहीं दे पाया, अगर 10 बजे के बाद होता तो गाली दे देता. मैं बोला ये क्या है? I work for government of India. Do you think I am not a citizen of India? I don't have mobile. I have. I will not give you. बोले सर नहीं सर, बिल करने के लिए देना पड़ेगा. मैनेजर बोला, मैनेजर आया, बोला सर ये, बोला फालतू बातें मत करो. I am from
I know what is the rule. You may collect my name, but it is not necessary to collect my phone number. If you have to really collect the phone number, then take a private device. आप फीडबैक लेने के टाइम पे एक बड़ा सा स्क्रीन दे देते हो, तो फोन नंबर लेने के टाइम पे एक बड़ा सा स्क्रीन मुझे क्यों नहीं देते हो? मैं वहां से टक 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 फोन नंबर दे दूंगा आपको, और फोन नंबर क्यों दूं? बाद में उसने मैं बोला आई नो व्हाई यू आर कलेक्टिंग, क्योंकि कल आप मैसेज भेजेंगे दिवाली में ये भाई इसके थ्रू तो मेरा एक ही फोन नंबर है यार, मेरे उसमें डुअल सिम है ही नहीं, मेरा एक ही फोन नंबर है, एक ही व्हाट्सएप नंबर है, वही बैंक में है, वही मेरा पीजी के पास है, वही मेरे जूनियर्स के पास है, मैं क्यों शेयर करूं आपके साथ? और मैं आज एक आई एम मेल human. I don't have any problem if around people get. But if my sister is coming, my wife is coming, my daughter is coming, everybody is getting his or her phone numbers, na? So particularly the ladies object, don't give the phone numbers. It is not mandatory. हाँ, आपको अगर ऑफर चाहिए तो वो तो आप ऐसे ही देख सकते हो वेबसाइट्स में कहाँ ऑफर है, छुपा रहता है क्या ऑफर जब आता है? मैक का भी ऑफर आ गया ना लिपस्टिक का, तब भी आपके पास आ जाएगा वेबसाइट में, क्या जरूरत है फोन नंबर देने में? लेक्मी का तो आएगा ही, मैक का भी आ जाएगा, क्या जरूरत है फोन नंबर शेयर करने में? और आईफोन का जब डिस्काउंट आता है तब तो अमेज़न वाले बड़े-बड़े होर्डिंग लगाते हैं कि आईफोन का ऑफर है, तो आपको फोन नंबर क्या जरूरत है? Don't share your phone numbers. Don't. You can do something. Sometimes they ask email IDs. No, you keep a separate email ID, which is not linked. See, your Gmail ID is definitely linked with your Facebook, Insta, and so many things. Drive. तो आप एक separate email ID खोलो जो आप सबको share करो. वो बाहर में जाए वो अगर उससे कुछ भी नहीं कर सकता. तो these are my some suggestions. Official email ID, all officials here. Official email ID तो उस जगह पे देना ही नहीं. आज मैं यूज कर रहा हूँ dir-agartala@delhi.gov.in. जब तक चेयर में कुर्सी में बैठा हूँ तब तक ये ईमेल आईडी मेरा है, जब कुर्सी छोड़ दूंगा ये ईमेल आईडी मेरा नहीं है. कल मुझे ट्रांसफर करके आज मेरे भेज दे तो मैं उधर का डायरेक्टर हुआ का ईमेल आईडी यूज करूंगा, तो ये ईमेल आईडी मैं क्यों दूं? दूसरा मेरा niladridas@delhi.gov.in और एक ईमेल आईडी है जो बिकॉज़ आई एम वर्किंग फॉर Delhi, दैट इज माय, वो भी मैं क्यों दूं? कल अगर मुझे नौकरी से निकाल दे या मैं नौकरी से भाग जाऊं या मेरा रिटायरमेंट हो जाए तो ईमेल आईडी काम करे तो मैं क्या करूंगा? मैं एक अलग से मैंने ये हाउस में एक ईमेल आईडी डाल के रखा है जो जहां पे स्पेशली पूछता है वो दे देता हूं, लेकिन उसके साथ मेरा कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ऑफिशियल पर्सनल कहीं पे जुड़ा नहीं है. इवन मेरा नेटफ्लिक्स का या प्राइम वीडियो का वहां का यूजर नेम भी वो ईमेल आईडी नहीं है, समझे? सो दैट इज व्हाट यू शुड डू. This is one more. I don't know. I have 10-12 more minutes. Spam mails. Spam mails. जो लोग ऑफिशियल से उनको मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा एक एनालिसिस है. स्पैम मेल आता है, यहाँ से मेल, यहाँ से मेल, यहाँ से मेल, हजारों मेल आपके मेल बॉक्स में आके पड़ा रहता है. आप सिर्फ सोचो, Monday to Friday, Tripura University is paying you lakhs of rupees to do your duty. Now every morning 9:30 you reach office and you see 15 such kind of spam mails and you go to each one of them. How much of national man-hour we are losing? Each individual is spending 15 minutes in going and traversing through the spam mails which are not related. So whenever you find a spam mail, नीचे दिखेगा unsubscribe, चौबा स्टॉप से आया, नेटफ्लिक्स से, unsubscribe करके उसको ब्लॉक लिस्ट पे डालिएगा. Otherwise, it will take out your time and in the process sometimes you may miss out some important mails also. Fine. ये जो भी ब्रॉडबैंड के ड्राइवर्स होंगे, जो भी आपके वाईफाई के ड्राइवर्स होंगे, जो भी आपके प्रिंटर्स के ड्राइवर्स होंगे, उसके ओरिजिनल वेबसाइट से आप डाउनलोड कीजिए. डोंट डाउनलोड इट फ्रॉम हियर एंड देयर, ठीक है? आपके पास whenever Jio comes, they give you a default password, right? Change it immediately and keep your own password because that default password anybody can crack it. Okay? And whenever you go out of your home, if you find that you are not using your modem and Wi-Fi for a substantial amount of duration of 5 hours or 6 years, it is a suggestion that you always switch it off and come. इसमें दो चीज होगा, एक तो है वो जो डिवाइस है उसका लाइफ इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है कुछ 2 रुपए भी हो, 5 रुपए कौन किसको देता है, तो 5 रुपए भी सेव हो सकता है मंथली. Two things. Third thing is whenever you are out of your home,
miscreants may use this facility to do some damage to somebody around. Okay, so whenever these kind of devices which remain idle and they are being utilized, so ton of modems disconnect, remove. हम लोग एयरपोर्ट में जाते हैं free Wi-Fi मिल रहा है, connect कर दो. There is vulnerability in that. But once you go some anywhere, आप मॉल में गए, free Wi-Fi. क्यों? डेटा कम पड़ रहा है क्या? 2 GB डेटा तो ऑलरेडी है आपके पास, क्या करोगे इतने डेटा से? तो don't get connected to, because everything free is not good. ये वर्कशॉप फ्री हो रहा है, इज गुड. ठीक है. हाँ, when you do online shopping, HTTPS, you should always see that the website is secure or not. Then only you do transactions. Okay, आपके दोस्त के घर में गए, उसके लैपटॉप में बैठ के आपने अपना पूजा का शॉपिंग कर लिया. क्यों? I can understand your friend is good, very good, very honest. वो चोर नहीं है, लेकिन उसका जो लैपटॉप है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है कि नहीं आपको कैसे पता? तो डोंट डू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एनीवेयर. बी श्योर वेयर यू आर डूइंग, एंड वेयरएवर यू आर डूइंग, लॉगिंग इनटू somebody's account, don't forget to log out from there anytime. And if you are if you are forced to use somebody's desktop or laptop to do some financial transactions, then use virtual keyboard to give the username and passwords. ठीक है, these are basic internet things. Internet ethics. आप इसको डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है, इसको धोने से नहीं होता है. You don't sell it. If you know that this is a very important, if I know that I have been using it for 5 years, sitting in a capacity of academic and manager, I will not give it to anybody. जरूरत पड़ेगा तो उसको आग लगा दूंगा, लेकिन उसको दूंगा नहीं. हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, जरूरत पड़ेगा तो उसका हार्ड डिस्क निकाल के मैं रख दूंगा, बोलूंगा उसको हार्ड डिस्क रिप्लेस कर लो, अगर ये इतना ही कॉस्टली डिवाइस है. और जब भी सारे रास्ते वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी मैं डिवाइस खरीदूंगा ऐसे दिमाग लगा के खरीदूंगा कि एटलीस्ट वो 3, 4, 5 साल तक जाए, कि उसको एक्सचेंज करने का नौबत ना आए. इतना इंटीरियर कराते हो घर में, एक बना लो ना, तो स्टोरी लाइन लिख सकते हो. ये मेरा फर्स्ट मोबाइल था, ये मेरा सेकंड, मेरे पास 3310 था, मैंने रख दिया सजा के. मेरा नेक्स्ट जनरेशन को भी देखो, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट मोबाइल दैट केम इन इंडिया. तो क्या प्रॉब्लम है, एक म्यूजियम बना लेंगे. इट इज वेरी डेंजरस टू एक्सचेंज. I'll take 2 more minutes. डेटा सिक्योरिटी, तो मैंने बताया कहाँ रखना है. आपके सिस्टम में जो डेटा है उसके लिए क्या करना है, ओरिजिनल एंटीवायरस यूज करना है, ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर को अपडेट देना है. ठीक है, तो 2-3 बातें बता देता हूँ सोशल मीडिया के बारे में. सोशल मीडिया में क्या क्या करना चाहिए. सो फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, प्लीज अंडरस्टैंड दैट आजकल HR इंटरव्यू नहीं होता है. सिर्फ टेक्निकल के बाद आपको बोला जाएगा आप आपका जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसके आईडीज दो और इस सिस्टम में खोलो. हम लोग देखेंगे कि तुम क्या अपलोड किए हो, क्या लाइक किए हो और क्या डिसलाइक किए हो. That will define that whether you are suited for my organization or not. और मैं एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा, लॉ प्रोफाइल करने से नहीं चलेगा, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड करना पड़ेगा. Then I will scan through your social media account and I will see whether you are suitable for my organization. So guys, whatever you do in today's date, you remember 5 years down the line when you sit for a very important position on the other side of the table as an interviewee, then the other person will try to go into your social media accounts and judge you by that. Okay? Second thing, whatever you see, you don't like, you don't share, वो तो मैंने बता दिया. कुछ लोग क्या करते हैं, आपका दोस्त है, आपको क्या बोलते हैं, उसको टैगिंग कर देता है, तो आपके वॉल में भी आ जाता है. तो आप सेटिंग में जाकर टैगलाइन जो है उसको पहले रिस्ट्रिक्ट करो. टीपी जो है कौन कौन देख पाएगा आपका टीपी, क्योंकि जब भी कोई फोन नंबर मिल जाता है, हम लोग आजकल क्या करते हैं, उसको पहले सेव करते हैं अपने मोबाइल में. सेव करके कौन है देखना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप में जाएंगे तो उसका टीपी आएगा.
तो व्हाट्सएप में आप वो करो, आपका डीपी वही देखेगा जिसका नंबर आपके पास सेव हो, ठीक है। और व्हाट्सएप का बैकअप भी होता है। व्हाट्सएप अगर आप बैकअप नहीं अलाउ करते हो फिर भी व्हाट्सएप में बैकअप होता है, और वो एंड्रॉइड फोन में इट इज वेरी इजी टू क्रैक इट। आप आज जाके YouTube में देख लेना हाउ टू गेट डिलीटेड मैसेजेस इफ बैकअप इज नॉट देयर। बैकअप होगा तो मिलेगा ही पक्का, अगर बैकअप नहीं है तब भी कैसे मिलेगा। एवरी डे नाइट एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका बैकअप ऑटोमेटिकली अंदर सिस्टम में सेव होता है। वो मैक और iOS में निकालना मुश्किल है आज के डेट में, फिर भी एंड्रॉइड में इजी है, तो ये आप सोच समझ के कीजिए, ठीक है। तीसरा, डिवाइसेस के बारे में तो बोल ही दिया। जब भी आप आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो तो बी वेरी श्योर व्हिच डिवाइस यू आर यूजिंग, व्हिच प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, HTTPS एंड ऑल दिस थिंग्स यू शुड रिमेंबर, ठीक है। और क्या बोला जाए, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर फीलिंग हंग्री। वाईफाई सिक्योरिटी, ट्रस्टेड नेटवर्क को ऐड कीजिए। तो ये मोटा-मोटा व्हाटएवर आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, हाउ टू कीप योर सिस्टम सेफ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ओरिजिनल OS, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट यू शुड यूज गवर्नमेंट ID Tripura unif.sir, what is that extension @tripura.unif.in, उसका एक्सटेंशन डोंट शेयर इट इनटू योर। आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं नीलाद्रिदास@mail.gov.in, पर CC अपना खुद का एक Gmail ID को डाल रहे हैं, तो ये तो हो ही गया शेयरिंग आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, ठीक है। So these are few things, with this I will end. Thank you Tripura University IT department for giving me an opportunity. If you have some queries, Any queries? I will try. Any queries, sir? Selling the book, you install a very big software onto the side of the hard disk for the book. Then to make the use the actual data. There will be some data left. There will be some data left out. There will be some phrases that this software was ever installed that will remain. There are in forensic there are 4-5 things. One is called this forensic. जैसे पेन ड्राइव हो गया, उसके साथ अभी no net or no electricity is connected. So that I will connect and I will take. Hard disk दे दो, उससे मैं connect करूँ. This is one thing. Second one is live forensic. आपका SBI का सर्वर, we cannot stop it, right? So मैं जाऊँगा, मेरा सिस्टम लगाऊँगा, लाइव उस मोमेंट में क्या क्या एप्लीकेशंस रन हो रहा है वो मैं ले लूँगा। दूसरा है सिस्टम बंद हो गया, लेकिन अब OS फोरेंसिक से मुझे पता चल जाएगा whether Instagram was ever installed in this system or not, whether Facebook app was ever installed in this or not, whether using some ID, whether any Facebook account was ever accessed from this system or not. तो ये forensic data जितना नया होगा, मतलब if it is very old then sometimes it gets overlapped, जितना नया होगा आपका forensic tool जितना strong होगा you can track or trace out the things easily. अभी भी I'm not trying to advertise one company, अभी भी forensic world में Mac devices और Mac OS के ऊपर काम इतना in depth में they could not go, but Windows में, Android में it's all open. That's why see Android, Windows, that's why it's very easy ना. Everybody is, आपके मोबाइल में एक Android वर्जन है, उनके मोबाइल में एक Android वर्जन is open. So even if you install some software, उसका कुछ traces रहेगा, उसका कुछ data भी उधर रहेगा, जिससे बाद में I can conclude that yes, he has used that particular software to do this. I said was that if I have some additional data and I want to remove it, so what if I install a very heavy software? कुछ नहीं होता है, वो एक ही होता है, या तो आप पोछा से साफ करो, नहीं तो डंडा से साफ करो, नहीं तो रोबोट से साफ करो, सेम ही है। अगर इधर साफ होता है तब भी किलो मकोड़ा में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाऊंगा दिखेगा, सेम थिंग। यू यूज ए APIM सॉफ्टवेयर टू अनइंस्टॉल दैट, Install that software. इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर। So I think there is over details. You can install very big software on the data. See, to install software there is a specific space, beyond that you cannot go, ठीक
है ना, आपका जो सिस्टम का जो इतना बड़ा स्पेस है उसमें OS छूट जाएगा, बाकी सॉफ्टवेयर छूट जाएगा, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो उसका एक स्पेस है, उससे बाहर नहीं जाएगा, देन यू अनइंस्टॉल इट आउट, तो कुछ ट्रेसेस वहाँ पर रह जाएगा, पक्का रह जाएगा। Right, for other software also, you will get overrated. हाँ ओवररेटेड होगा, लेकिन कितने हद तक आप कर रहे हो? आप बोलोगे मैंने 100 GB इंस्टॉल किया था, 100 GB अनइंस्टॉल करके उसके ऊपर और एक 100 GB इंस्टॉल किया, आप कह नहीं सकते कि वो 100 GB कहाँ पे था? Got my point? वो 100 GB कहाँ पे था? You cannot say. सर बेस्ट एग्जांपल ये जो फोटो है ना, सर का फोटो आप जिसका आप नहीं so whatever you install, so rest of some of the data will be remaining. Something will be remaining, that's for sure. वो डिपेंड करेगा आप 5 लाख का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो कि 10 लाख का कि 20 लाख का कि 25 लाख का। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स आर फ्रॉम यूएस एंड रशिया। हमारे जितने फोरेंसिक के सॉफ्टवेयर हैं, एक सॉफ्टवेयर 20, 25, 30 लाख में, एक साल का लाइसेंस ओनली, 1 ईयर लाइसेंस। समझा सर? अगर पूरा हमारा जो डेटा है उसको अगर पूरा रिप्लेस भी करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? फिर भी there are slack spaces which are hidden kind of things which you cannot if one TB is there, if I replace with one TB, again I delete नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अगर ये स्पेस 1 TB है, आप 1 TB इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे पहले। सम टेम्पोररी स्पेसेस जो आपको एक्सेस ही नहीं देगा, उसके अंदर घुसा घुसा रहेगा। तो 2-3 बार ऐसे करो We cannot sure. No, still you remain assured that there will be some traces. डिजिटल ऐसा ही है, कुछ तो ट्रेस रह जाएगा। ठीक है। One more important thing is this is one angle. मोबाइल डिवाइस में घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन मोबाइल डिवाइस यूज करता है तो उसका अकाउंट आज के डेट में बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। They get their pension, they get their OTP. So force them to use such a device जिसका लॉक हो। वो लोग बोलेंगे नहीं मेरा ये कीपैड वाला ही चलेगा। उनको समझाओ कि अगर कीपैड वाला चलेगा तो इस नंबर के साथ बैंक जुड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं रहेंगे कोई आ जाएगा आके OTP चेंज करके पैसा उठा के ले जाएगा। So this is one thing. I was just trying to tell you generalized things. How much we can trust the antivirus software like Truecaller for the antivirus? These are the third-party software. In which angle you want to believe it? In which angle you want to believe it? That is, it is the same person or not? In Truecaller कैसे काम होता है? Suppose मेरा नाम किसी को पता ही नहीं, किसी को पता नहीं इस अगरतला में, सिर्फ सर को पता है, सर ने Truecaller इंस्टॉल किया, सर के फोन बुक में इसका नाम रखा नीलिट, आपके यहाँ पे नीलिट है, वो कहीं ना कहीं से डेटा है, तो इसको विश्वास करने का कुछ नहीं। It is not human made, इसमें विश्वास क्या करना है? There is no original identity. Truecaller आधार कार्ड में आधार ऑथेंटिकेशन करके Truecaller नहीं इंस्टॉल होता। But that is the reason. Actually, it's not the issue. How can we identify the names? It's the issue they are having a server which stores the numbers. From you, they are collecting it from you. Yeah, that. So if I have your number, is it possible that that particular server can access your number to me? एक्सेस नंबर क्या है? वो कॉल कर सकता है मुझे फोन करके, और क्या एक्सेस करे? So that is how that your number is also exposed. My number is exposed, but the device is with me. He knows. See, he knows my number, but he does not have the capacity to operate or use that number. वो उससे कॉल नहीं कर पाएगा, उससे मैसेज नहीं कर पाएगा, उसका OTP उसके डिवाइस में नहीं जाएगा। अगर क्लोन करता है, कुछ करता है, तो there are chances. हो सकता है नहीं, आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना सर। मेरे मोबाइल में Truecaller इंस्टॉल नहीं है, ठीक है? मेरा नंबर आपके पास सेव है, आपके बुक में मेरा नंबर है, ये है नंबर, ये है नाम, ये है सर्वर के पास चला गया कि नीलाद्री दास का नंबर ये है, ठीक है? इनके पास ई नंबर नेट से सेव हुआ है, इनके पास यही नंबर नीलाद्री दास से सेव हुआ है, तो मेजॉरिटी का नाम क्या है? नीलाद्री। तो when I will call him, इनके पास अगर Truecaller है, Truecaller इस सर्वर को खींचेगा, खींच के देखेगा कि उसका नाम क्या है? नीलाद्री, तो उनके यहाँ पे नीलाद्री दास सेव हुआ। ऐसे चीज मेरा मोबाइल में एक्सेस तो नहीं है ना। तो मैंने एक बार क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड को नंबर दिया, तो वो Truecaller मेरा मोबाइल नंबर टाइप किया, तो एक में ऐसा हुआ, एक में आया
Dr. S.K. Vishwas. My mobile number not saved as my Dr. S.K. Vishwas. Another mobile में उसने Truecaller डाल के तो उसमें आया Sapan sir. So whose some of my students have been saved. ये एक डिफरेंट एप्लीकेशन है, ये इसके साथ कोई लॉजिकल थिंग्स है, इसके साथ कोई संबंध नहीं है सर्विस प्रोवाइडर का। मेरा एयरटेल का नंबर है, मेरा नंबर एयरटेल कंट्रोल करता है। नहीं सही वेक्यू सेम में आप यूज करना चाहते हो, लेकिन जब आप Truecaller इंस्टॉल करोगे तो आप सबका नाम, आपके सारे दोस्त का नाम दुनिया को दे रहे हो। Is it a good ethics? आप कुछ फायदा लेना चाहते हो, क्या फायदा? कि मैं जब Truecaller इंस्टॉल करूंगा तो कोई मुझे फोन करेगा तो मुझे वो नाम आएगा। I will know in advance। क्या हो गया आपको अगर सर मैंने कॉल कर दिया, मेरा नाम अगर पहले बार में नहीं है, मैं फोन करके बोला सर नाउ आई एम सो एंड सो, फोन उठाने से पहले ये नीलाद्री दास का फोन है, इससे क्या फर्क पड़ जाता है आपके जिंदगी में? मुझे समझ में नहीं आता, मैंने तो Truecaller इंस्टॉल नहीं। आपके जिंदगी में यह क्या फर्क पड़ जाता है कि एक अननोन नंबर आपको कॉल कर रहा है और आपको फोन उठाने के बाद पता चल रहा है कि मैं डायरेक्ट से कॉल कर रहा हूं, उठाने से पहले समझ में नहीं आ रहा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर you don't want to miss important phone calls, then definitely their numbers are saved. मैं दिन भर देखता हूँ 2-3 लोगों का फोन ना आ जाए। पहले मैं जब जून आई टू कवर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर, बिफोर दैट मेरा 2 ही नंबर था जो मेरा जिंदगी का 3 नंबर फैमिली छोड़ के ऑफिशियल, मेरा कंट्री हेड और मेरा स्टेट हेड, बाकी बाहर में जाए। वो 2 नंबर तो मेरे पास है ना। अगर मेरा डीजी दूसरा नंबर से कॉल करेगा तो मैं उठा के, ऐसा थोड़ी कि उठाने के बाद ही सर गुड मॉर्निंग कैसे बोलेगा नीलाद्री मैं इंजीनियरिंग को आज सर गुड मॉर्निंग बोलने से क्या मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा? So before using some software, some applications, we should be sure that what we are doing, how we are utilizing it, and where we are positioned. कोई मैंने बोला ethics, there should be some good ethics that we follow in the internet world also, because virtual world के साथ ही तो जुड़े हैं। मैंने इस दशहरा में और इस दिवाली में कितने लोगों को, मैं अपना चाचा ससुर को कॉल करना भूल गया, बिकॉज दशहरा के दिन मैं और पुत्र था बोल देते हैं दिल्ली ने भी मिनिस्ट्रीज प्रोग्राम रात को 10 बजे चाचा को कॉल करने भूलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। चाचा ससुर उनको कॉल नहीं किया, तुम समझो मेरा डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो सम एप्लीकेशंस वी शुड यूज, सम एप्लीकेशंस वी शुड रिजेक्ट। सब लोगों ने Truecaller यूज करना शुरू किया, इसीलिए Truecaller के पास सबका नंबर है। क्या जरूरत है इसका कि कोई कॉल करने से पहले में ये हमारा अभी डिस्कशन हुआ इसलिए एक मुद्दा है, ऐसा बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसे एप्लीकेशंस यूज ना करने से क्या, जिस एप्लीकेशन से मैं फोटो को इतना रिफाइन करूं कि मुझे पहचाने ना आए कोई। ठीक है, जो मुझे नहीं पहचानने लगेगा कि उसका शाहरुख खान जैसा चेहरा है, लेकिन जो पहचान आएगा वो तो हंसेगा ना। तो ऐसा फोटो रिफाइन करने का क्या जरूरत है यार? हम क्या मॉडलिंग में जा रहे हैं क्या? हर मॉडलिंग में जाएंगे तब भी तो मुझे ओरिजिनल पिक्चर होना चाहिए। शाहरुख खान जैसा तब जाके मुझे मन्नत जैसे एक घर मिलेगा उधर। फ्रॉड मतलब क्या? आपको फ्रॉड नंबर क्या? सर आपको, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप फोन उठाने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि फ्रॉड है नहीं है। आपको इतने इंटेलिजेंट बनना है अगर नहीं हो। अभी आ रहा है एयरटेल ने आपको हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है, ऐसे बाकी करेक्ट करेगा, लेकिन उसके पहले मुझे होना चाहिए ना। मुझे दिन कॉल किया, पैसा मेरा फोन नंबर डिलीट मत करो, किसने बोला? ठीक है ओटीपी। मैं बोला मैं ओटीपी नहीं दूंगा। मैं भी मजाक कर रहा था, हम दोनों गाड़ी में जा रहे थे। तो जब ये फोन आएगा तब आपको तुरंत पता चल जाएगा ना क्या बोल रहा है। आई एम कॉलिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम है ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम बोल के कुछ है ही नहीं। तो आप that's what once I use this, I should be smart enough to know how to use it, otherwise I should not be using it. I should be restricting it to basic necessity. मुझे अगर गाड़ी चलाना नहीं आता है तो मैं फेरारी लेके क्यों निकलूंगा कावाचुमुनी में? ठीक है ना?
बहुत आप देखे होंगे गुजरात में, बॉम्बे में बच्चे लोग ठंडे के लिए निकल जाते हैं, चलाना ही नहीं आता है, उसका पावर कितना है वही समझ में नहीं आता है उनको, तो मैं यूज नहीं करूंगा ना सर। अगर मुझे ये डिवाइस यूज करना आता है मैं क्यों यूज करूं, मैं सीखूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। One small suggestion, every minutes you spend 2 minutes in YouTube या Google में साइबर सिक्योरिटी टिप्स, बस आपका जिंदगी सुधर जाएगा। 2 minutes only every day, just 2 minutes. You try to understand out of 365 days how many minutes you are going to get. तो नेक्स्ट अक्टूबर में हमें आना नहीं पड़ेगा, सर को बोलना नहीं पड़ेगा, आप में से कोई बोलेंगे आपको। ये नॉर्मल चीज है, मैंने जो दिखाया मुझे थोड़ी बी कंप्यूटर साइंस और एमए कंप्यूटर साइंस चाहिए सब, ये नॉर्मल पीपीटी है, वो आईएससीएफ इसके मिनिस्ट्री ने दिया हम लोगों को सबको दिखाने, सिंपल, कोई भी देख सकता। दैट्स ऑल, मतलब मैं जस्ट एक बाइट देने का कोशिश किया, पहले जो स्पीकर्स थे दे आल्सो आई थिंक गिवन एनफ डिस्कशन। आप 2 मिनट स्पेंड कीजिए यूट्यूब पे या कहीं पे। एनीथिंग एल्स? थैंक यू, आई थिंक one more thing, don't pick up, sir बोल रहे थे ट्रू कॉलर, don't pick up video call from unknown numbers। अगर कोई मर भी जाए मत उठाओ। मैंने उस दिन मेरे एक पुराने कोलीग को गाली दिया, मैं बोला तुम क्या समझते हो, तुम्हारा नंबर ये सेव नहीं हो, तुम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल तो क्या जरूरत है तुम्हें कि मुझे देखना है, मैं फोटो भेज देता हूँ, तुम ऑडियो कॉल करो ना पहले, फिर बोलो कि सर मेरे साथ में ये ऑफिसर आया दिल्ली से, आपसे एक बार वीडियो कॉल में बात करेंगे, तो बात करेंगे तो फोन नंबर होना चाहिए, नहीं तो गूगल मीट करो। ठीक क्या होता है सर, मुझे फिर आधा घंटे के बाद मुझे फोन करके, मैं उठा नहीं रहा, किसी और को फोन करके बोल रहे हैं हाँ सर आजकल फोन नहीं उठाते, डायरेक्टर बन गए। बोला भाई ये क्या बात हुआ है यार, मैं ऑलरेडी आपका फोन उठा तो आपका नंबर सेव नहीं है, और वो भी मैं वीडियो कॉल क्यों करूँ? डोंट डू इट, उसके बारे में देख लेना जाके 2 मिनट, वीडियो कॉल से वेरी डेंजरस, अननोन नंबर, डोंट रिसीव। Thank you. Thank you, sir. Thank you for your nice session. And of course, I think all of us have got at least 1 or 2 important things from this particular session. Thank you everyone for being with us and for joining us. Please, we have arranged a small refreshment for you. Please, yeah, sir. We have raised a lunch packet. Thank you.